Going on, everybody, and welcome back to the channel. Now today, hey, we've got the Breakfast with Champions series once again. We've finally got the long-awaited Sourav Ganguly. I've been seeing a certain person comment, you know who you are. You've got me to do this episode. Look, it's been on my list for a while. And to be honest, I just haven't gotten to it, and that's my bad. So we are finally here. I know there is 2 parts to the video as well, so this might be like half an hour, 40-minute video. So get your popcorn, get your mum, get your dad. Sourav Ganguly on team building, his sacrifice for Dhoni and Invincible Australia. Let's get into it. Subscribe if you're new, comment down something. Let's go, come on. जब आपने अपनी शर्ट उतारी Shout out to the man Gaurav. लॉर्ड्स की बालकनी पे, तो वो आपको रोकने की कोशिश कर रहा था। हाँ बिल्कुल सही बात है। Water. मैं राइट में था, मेरे पास साइड में वीवीएस था और पीछे भज्जू था। तो जैसा मैंने ऐसा शर्ट ऊपर करने की कोशिश की तो वीवीएस ऐसा खींचता कि ना कर, और पीछे भज्जू था और मुझे कहता अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा तू भी खोल दे। मेरे पीछे बिल्कुल पीछे खड़ा था, गरम भी था तो खोल लिए घुमा के घुमा के। So that's where that came from. Okay. Hey, shout out to all the sponsors for the man Gaurav. Ooh, where are they at? England. Oh, that's not great. They're in England. That's not great. Oh shit. Hey, I ain't even gonna lie to you though. Like, I've never been to England. Obviously, I don't really plan on going unless it's for like an EPL game or cricket, but. Gee whiz, I mean, like, what's going on with their policemen or women, sorry, as well? We don't discriminate over here. All the buildings, like, it looks like they're still living in 1932. Like, does anyone else, like, think that whenever they see England, it looks so old. Like, nothing's been upgraded. Like, what are these guys? Like, honestly, Royal Guards? Like, come on. Still I'm taking them out one-on-one. Yeah. लंदन में बताना पड़ता है ना स्टिल या स्पार्कलिंग, नहीं तो सोडा आ जाता है सोडा। आप यहाँ शॉपिंग वॉपिंग उतना नहीं करते, शॉपिंग साइट सीइंग उतना नहीं। Who would? मैं तो कितनी बार अब आ चुका हूँ लंदन। Who would want to? मतलब I think it's the best thing is to at times you come and just enjoy the natural thing. You know, wake up late, sit, do your work peacefully. नहीं तो लाइफ में भागम भाग बहुत हो जाता है, इधर भागो उधर भागो। तो यू स्पेशली इन कैलकाटा में तो सारा टाइम मतलब सुबह से उठ के इट मस्ट बी लाइक दैट ओनली नो कि 50 लोग टाइम मांग रहे हैं ये कर दो। Is that where Ganguly's originally from? Kolkata? Yeah. Or is it? Oh! अच्छा I do a lot of things, Gaurav. Gaurav didn't even tell him yet. And to be honest, मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि काम थोड़े बंद करें क्योंकि it's becoming too much. क्योंकि वो तो रोज का है ना, आपको जाना पड़ता है, रोज जाना पड़ता है। I host the show. Yeah. I do 75 episodes in 6 months. What? Yeah. 75 episodes in 6 months. हमें बड़ा छोटा दिखा दिया आपने। देखो सब अपनी नजरें नीचे झुकाओ, पूरी क्रू। फिर Efficiency. 100 दिन देने पड़ते हैं इंडिया टीवी को। Yeah. फिर जो स्कूल का वो काम चल रहा है। Yeah. I still endorse about 14 brands. Damn. फिर 14 समर में थोड़ा brands. इंग्लैंड। ये मस्ट है। ये सबसे जरूरी काम ये है। मस्ट है। और साल का जब लिस्ट होता है ना, Yeah. जब समय का काम का जो टाइम टेबल होता है उसमें ये गैप ढूंढते हैं कि पहले गैप ढूंढो फिर काम का गैप ढूंढेंगे कि कब भागना है इधर से। तो you love this country. Yeah. और मतलब आपका तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही Hey, लव whoa, अफेयर है whoa. इस कंट्री। Love is a strong word, Mr. Ganguly. Love is a strong word. He loves India. You love England? I don't know about that. I don't know if anyone's ever said they love England before. So that's a big statement. मतलब डाउन द रोड लॉर्ड्स में क्या क्या काम करे आपने, क्या काम करे शुक्र हैं? है शुक्र है रन बनाए, वो पहला काम था। सबसे पहले रन बनाए, शर्ट उतारी। हमें प्रीवियस लक्ष्मण ने कहा कि जब आपने अपनी शर्ट उतारी वहाँ पे लॉर्ड्स की बालकनी पे, तो वो आपको रोकने की कोशिश कर रहा था। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं राइट में था, मेरे पास साइड में वीवीएस था और पीछे भज्जू था। तो जैसा मैंने ऐसा शर्ट ऊपर करने की कोशिश की तो वीवीएस ऐसा खींचता कि ना कर, और पीछे भज्जू था और मुझे कहता अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा तू भी खोल दे। मेरे पीछे बिल्कुल पीछे Hey, खड़ा trust था। the man, तो उस टीम में ना Harbhajan ऐसे मिक्सचर थे, एक मैं जैसा था पागल
फिर भज्जू, जहीर, वीरू, युवराज थोड़े से नॉर्थ इंडियन थे, हाँ, आपको पता ही है नॉर्थ इंडियन में क्या, और उसके बाद राहुल द्राविड थे और वीवीएस लक्ष्मण थे। Studious type। हाँ, जो ऐसे टेबल पे बैठते थे ऐसे करके, हाँ। ऐसे करके कपड़े वपड़े डाल के टेबल में बैठते थे, तो एक अच्छा मिक्सचर था टीम में। तो मुझे अभी भी याद है उधर कि पर ये सोचा कब था? दिस वो मस्ट हैव बीन तभी उसी वक्त कि वो फ्लिंटॉफ का इंसिडेंट चल रहा था दिमाग में, उसी उसने से- कहा, "नहीं, वो उतार सकता है हमारे पे, तो हम उसी तो से, क्या है?" क्योंकि हम 3-2 आगे थे वानखेड़े पे और इंग्लैंड जीता और सीरीज 3-3 हुआ। श्रीनाथ जी बोल्ड हो गए, हर समय आखिरी गेंद पे आउट हो जाते, तो बोल्ड हो गए तो फ्लिंटॉफ ने वानखेड़े पे घुमा दिया। Yeah. तो मैंने कहा चलो ठीक है लॉर्ड्स में भी कर लेते, बिल्कुल। गरम भी था तो Hey, and I wish we saw more of that in today's cricket world as well, like where players just over celebrated. Like, man, like even sometimes it can be too much. But the man Freddie Flintoff, obviously, he would have done anything he wanted, the man Freddie. So he would have just taken his shirt off after a great win, having fun, not thinking too much of it. But little did he know that was probably the whole inspiration for India to go and win the next game and then do the celebration as well, which would have just felt so good for Indian players at that time. Woo! At Lords as well, on the लेकिन मैं balcony. थोड़ा सा embarrassed हूँ। Doesn't get much bigger. Incident में। Doesn't पता get नहीं much क्यों bigger or better than that. मेरी बेटी देखी एक दिन, कहते आप ये क्यों कर रहे थे, ये क्रिकेट में करना पड़ता है, तब छोटी थी। मैंने कहा नहीं Yes, it करना is. नहीं पड़ता, मैंने कर लिया था गलती से। No, it's तो- necessary. तो ये कभी कभी हो जाता है यार, लाइफ में ऐसी चीजें कभी कभी हो जाता है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। अभी हमने पिछले कुछ दिन आशीष नेहरा के साथ बिताए, Woo! Neera. मेरा फर्ज बनता है कि आपका सवाल दिन पूछूं। अच्छे गए होंगे, मतलब बड़े अच्छे गए, निकल जाते पता भी नहीं चला। आशीष के साथ रहोगे तो अच्छा ही जाएगा। वो कह तो रहा था उस दिन, वैसे हमने उसको बताना पड़ेगा, उस दिन आपको एक वो ताना मारा था छोटा सा, बताना पड़ेगा वो उसको कि हमेशा मारता है, क्योंकि उसको पता है कि इस आदमी को ताना मारोगे तो कुछ वापस नहीं आएगा, ये रिसीविंग एंड पे होता है। पर उसको कौन कुछ बोल पाता है वापस। नहीं, और इतने समय गुजारे हैं ना इनके साथ, आशीष हो, वीरू हो, यूवी हो, हरभजन हो, इनके साथ एक अलग सा रिलेशनशिप बन गया है। या तो इनको पता है कि जो भी हो जाए, बातें हो जाए, ताने मार दे, खराब बोल दे, गुस्सा हो जाए, कभी खराब नहीं करेगा। तो वैसा एक रिलेशन। आपके बारे में बड़ी अच्छी चीज बोली थी उसने शो पे, वही सेट कि दादा ने अपने आदमी चुन लिए थे। तो दिस यू कैन क्लैरिफाई फॉर अस, क्या व्हेन यू सॉ दीस गाइज एंड यू सॉ तो यूवी, भज्जी, आशु, जैक, ये सारे जो उस वक्त के नौजवान थे, इसमें टैलेंट बहुत थे, इसीलिए मैं ये देखता था पहले जब टीम बनाता था कि मुझे जिताएगा कौन। मुझे वो ड्रॉ वाले प्लेयर नहीं चाहिए थे। जब अच्छे खेलोगे तो जीतना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में आके, ऑस्ट्रेलिया में जाके, साउथ अफ्रीका में जाके वो आपको हराएंगे। पॉन्टिंग तो 200 बनाएगा, हमें वॉन आउट करेगा, मगरा भी आउट करेगा, लेकिन हमें भी आउट करना है। जिस दिन हम ऊपर हैं तो हमको जीतना है, फिर क्योंकि जिस दिन हारना है वो हरा ही देंगे हमको। आशु Hey, का सबसे and even though he's in England right now, he is just disrespecting England as he speaks. Because, well, as we all know, England are probably the most scared team when it comes to winning or losing a game. If they can go for the draw, they always go for the draw. Especially the England team of the last 10 to 15, 20 years. England go for the draw. That's what they're known for, in my opinion. In a test match, tough situations, there's a win that can either go, obviously it can be 50-50, a win or a loss, but they prefer going for the draw. It's just what England do. So I love this from the man Ganguly. He knows he's just insulting them while sitting there. I love it. Hey, he's बड़ा doing it, चीज I था know. कि पेन बेयरिंग एबिलिटी। वर्ल्ड कप में 2003 वर्ल्ड कप में जब नमीबिया के सामने वो गिरा, रनअप में उठा और स्लिप हुआ स्पाइक्स, क्योंकि इतने हार्ड पिचेस होते थे ना, तो स्पाइक्स बैठा नहीं, तो स्किड करके गया बॉलिंग रनअप पे, और अगला दिन उठा तो एंकल इतना सूजा हुआ था। तो इंग्लैंड मैच से पहले आशु से पूछा, आशु एंकल तो इतना सूजा हुआ है, क्या करेगा? अरे कोई बात नहीं। मैंने कोई बात नहीं मतलब इसका क्या मतलब है, तू खेलेगा कि नहीं खेलेगा? नहीं खेलूंगा। बोला खेलेगा तो ठीक है, लेकिन डालेगा कितना, मेरा पेस पे कि तेरा पेस पे? कहते नहीं आप चिंता ना करो, सिर्फ फिजियो को बोलो मेरे साथ रहे। तो मैंने फिजियो को कहा भाई देख इसके साथ रहे, तू जैसे भी उसको खिलाना है, और आके सीधा 150। तो इसलिए इज्जत बहुत था उसके लिए मेरा। और जब भी उसको ड्रॉप करता था ना, तो रात को मुझे पता था कि मैं चाय वगैरह मंगा के रखता था। मैच से आए, वो मैच आशु नहीं खेला, मैं पहले आके रूम सर्विस को 2 चाय दे देना, क्योंकि 10 मिनट में आशु आएगा अपने शॉर्ट्स पे, अपने स्लीपर्स पे, दिल्ली वाला स्लीपर्स, कनॉट प्लेस का स्लीपर्स आके, मुझे बताओ मैं क्यों नहीं खेला। चाय पी ले, मैं समझाता हूँ।
like मैंने it. ये डाला, मैं 150 पे डाल रहा हूँ, मेरा बॉल अंदर आ रहा है, मेरा स्विंग ठीक हो रहा है। मैंने कहा अगला मैच तो खेलेगा, तो अब जाके शांति से सो जा। और मुझे अच्छा लगता था ऐसे प्लेयर। Yeah. इसी हिसाब से प्लेयर चुनते थे जो आपको जिताएगा। जैसे वीरू का ओपन करना, जब वीरू का सिलेक्शन हुआ था तो कहते थे यार तुम इसको क्यों लेके जा रहे हो, तेज़ गेंदबाजी, सर पे मारेगा उसका बॉल। मैंने कहा आपने उसको खिलाया नहीं यार, आपने उसको मौका ही नहीं दिया, आपने जजमेंट कर दिया उसके ऊपर। तो डेब्यू में 100 बना दिया साउथ अफ्रीका में। उसके बाद हमारा जो मिडिल ऑर्डर था उसके लिए जगह नहीं बन रहा था। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि वीरू देख, ग्राउंड के बाहर बैठ के तो कोई प्लेयर बना नहीं है, तू ओपन कर। ऐसा कोई पैदाइश ओपनर तो हुआ नहीं है। अगर हेडन लैंगर कर सकता तो What a change that was. So, the man Ganguly is behind the switch of him going to open and then essentially changing his entire cricketing career. I mean, he's got the man Ganguly to thank for it. तू भी कर सकता है। और उन्होंने कहा देखो कभी किया नहीं, दिल्ली के लिए 5 नंबर 6 नंबर खेला, आउट हो जाएगा तो क्या होगा, तो आउट तो नीचे भी हो सकता है। उसको खिलाने के लिए ही हमने 3 पे खेला है, क्योंकि नहीं तो वो बेचारा 6 नंबर पे खेलता था। ओपन करा इंग्लैंड में, यहाँ पे 100 बना दिया सीधा 100 बना दिया। और मैं हमेशा उसको कहता हूँ पागल है थोड़ा, क्योंकि फिर जब भी दिखा होता है कि आपने मुझे बीच में नहीं खिलाया। मैंने कहा तो आधा प्लेयर भी नहीं होता जो वीरेंद्र सहवाग प्लेयर लोग कहते, इतना इम्पैक्ट, इतना मैच विनिंग एबिलिटी वो बीच में खेल के नहीं होता। और 8,500 टेस्ट रन मतलब उस इम्पैक्ट के। जब क्रिकेट में आए थे पहली बार, जब 96 में आया था इंग्लैंड में, तो ये सोचता था कि ओपनर्स का काम है बॉल को छोड़ के पुराना करना। वीरेंद्र सहवाग का काम था मार के पुराना करना। तो ऐसे इंसान था। तो 325 जब चेस किए लॉर्ड्स में, वो सिटी मार रहा था। मेरे पीछे लॉन्ग रूम में स्टेप से उतरे, मैं गुस्से में था थोड़ा, क्योंकि फिर 300 बना दिया है। फिर ये पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हर मैच तुम 300 बना देते हो, 280 270 चेज हो जाते, तब इतने बड़े स्कोर चेज नहीं होते थे। तो सिटी मारते हुए आ रहा है। मैंने कहा वीरू क्या चल रहा है यार, तीसरा फाइनल है, हम फिर दूसरा टीम में 325। कहता हम आज हम जीतेंगे। मैंने कहा जीतेगा जब भी तू 100 बनाएगा 70-80 बॉल में। कहता आप चलो दोनों देखते हैं। तो हमें स्टार्ट अच्छा मिला, 10 ओवर में हम 100 रन थे। ईरानी का ओवर आया। मैंने कहा वीरू देख, हमारा 7 ओवर में 70 रन बोर्ड पे है, हम ये मैच जीत जाएंगे, कुछ उल्टा शुल्टा मत कर। हमको ओवर में 7-8 काफ़ी है। कहता हाँ चिंता ना करो। रॉनी ईरानी का पहला बॉल मीडियम पेसर था, मिड ऑन सारे आगे, पहला उठा के ऊपर से मारा चौका। तो मैं ऐसा टैप करते हुए उसके पास आया, देख वीरू चौका आ गया, तो सिंगल खेल आराम से 7-8 ओवर का हो जाएगा, तो आउट मत होगा। कहते नहीं नो प्रॉब्लम दूसरा बॉल फिर उसमें दिया, ऊपर से मारा। मैं जाके टैप करके बोला वीरू 8 आ गए हैं। हाँ नो प्रॉब्लम। फिर तीसरा बैट उसको स्वीप मारा, और स्वीप मारा मतलब बिल्कुल स्टंप से, मतलब मिस होता तो आउट ही। तो फिर जब मार के ना मेरा तरफ देखा नहीं, तो घूम के ऐसा गार्ड लेके फिर खड़ा हो गया। तो मैं दूसरे एंड पे खड़ा था। फिर चौथा बॉल आया, फिर स्वीप मारने गया तो दूर डाल दिया उसने। तो ऐसे लास्ट मिनट पे बैट खोला तो इधर से चौका हो गया। तो फिर दोनों मिले ही नहीं 2 ओवर बीच में। मैंने कहा तू अपना खेल, किसी का सेंटर नहीं है, तू तेरी मर्जी खेल। आउट हो गया तो फिर तुझे शाम को मैं देख लूँगा। तो ऐसे ही रिश्ते थे इनके साथ, ऐसे ही रिश्ते थे। और लड़ाई भी होती थी, झगड़ा भी होता था, लेकिन मज़े से क्रिकेट खेले उस समय। क्योंकि बाहर जाते थे, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, जीत के आते थे। उसमें मज़ा था, क्योंकि इंडिया में तो सभी जीतते। इंडिया में जब मैं कप्तानी करता था, कभी कभी सो जाता था लंच के बाद। कुंबले और हरभजन को बॉल देकर और पॉइंट पे जाके चुपचाप खड़े होते, वो अपने आप आउट कर देते थे, फील्ड लगा लेते थे, सिली पॉइंट शॉट करके फिर बैटिंग के लिए। कप्तानी होती थी बाहर। Hey, that is always how you can measure how good a captain actually is of a team when it's an away tour. If they can keep the group galvanized, if they can win games away from home. That's how you know if someone's the real deal captain or not. When they win away from home in big test tours, धोनी जब आया when you know they're legit. 2004 में, 2004 में 7 नंबर पे खेला पहला 2 मैच। तो हम पाकिस्तान के साथ वाइजैक पे गए। तो मेरे को ऐसे रात को जब टीम मीटिंग हो गई, टीम अनाउंस हो गया, तभी भी धोनी 7 नंबर पे था। तो मैं कमरे में बैठे बैठे न्यूज़ देख रहा था और सोच रहा था कि इसको प्लेयर कैसे बनाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत दम है। तो अगला दिन सुबह वार्म अप किए, टॉस हुआ, टॉस जीता, बैटिंग के लिए डिसाइड किया। आते आते लगा कि भेज ही देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वो शॉट्स पे बैठा था, क्योंकि उसको पता था 7 नंबर। मैंने कहा MS 3 नंबर पे खेलना है। कहते हैं आप? मैंने कहा मैं 4 खेलूंगा तो 3 खेल लेते हैं। 170 बना लिया।
प्लेयर ऐसे ही बनते हैं। Yeah. आप प्लेयर को कभी नीचे डाल के प्लेयर बना। facts. And this is what I'd be talking about with cricket in every single team. Every country in the world does it. I literally reviewed the game just between India and Zimbabwe yesterday. And I spoke about how the man Sanju Samson always gets brought down the order. When he's in the team, he's not given much opportunity. He's always just thrown down the end of the order and told, go and do whatever you can. Like, you've got to give someone that opportunity. If someone's a great player, it honestly does not matter what position in the 11 they bat. If they can bat, they can fucking bat. And they can make runs. Like, that's what I've never really understood. We're always so afraid to swap players around in the 11. Like, oh, you know, no one would dare, you know, change Virat Kohli from like a, you know, batting at 4 to even number 5 or number 3 or even to open. Like, I think of David Warner. Like, there is zero chance, even if his career was over, he would never change position from opening. It would just never happen. I still think cricket nations have got to be more flexible, especially the captains. If a player's not making runs for a few games, they're not looking settled, just bring them down or put them back up the order if they're from down the order. There's nothing wrong with a good change or two just every now and then. उसको गहरे पानी में डालना आगे ही पड़ेगा। डालना है, तब आपको पता चलेगा कि इसमें है That's what I'm या saying. इसमें नहीं है। पर वो आपने देखा था उसमें, जब मतलब प्लेयर तो देखा था, यू सेड आपने प्लेयर तो देखा था उसमें, पर ये जो ऐसा कप्तान बन जाएगा, नहीं, ये इतनी चीज़ें दिखता नहीं है पहले, या समय के साथ, बट दम बहुत था, अंदर से दम बहुत है। या किसी को लगता है ना कि ताकतवर है अंदर, जिगर है, जिगर वाला। पर मेरे को वन ऑफ, यू नो, एज अ क्रिकेट फैन कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में रह जाती हैं, जो इमोशनल होती हैं और बड़ी अच्छी रहती हैं। जैसे दैट लास्ट सेशन दैट यू कैप्टन इन योर लास्ट टेस्ट मैच, मैं सेड आप कप्तानी करो। एज अ फैन मुझे देख के ना, मतलब जैसे आंखों में आंसू आने वाले, दिल भर जाता है वाली बात हो जाती है। आपके साथ भी होगा ऐसे ही, मतलब when did you know he was going to do that? No, I was surprised. मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना है, आप करो। कहते नहीं कर लो, मैच तो जीत जाएंगे। 2 ओवर की बात है। मैंने कहा 2 ओवर ही करना है, क्योंकि मैं स्विच ऑफ हो चुका था तब, आखिरी दिन था, 5th डे लास्ट टेस्ट। मैंने कहा मैं स्विच ऑफ हूँ, मेरा एंड है, द एंड। तो कहता नहीं आप कर लो, तो करके 2 ओवर करके उनको दिया। बट खुशी होता है एमएस को देख के, इसीलिए क्योंकि हम लोग जब क्रिकेट शुरू किए ना, ईस्ट से क्रिकेट नहीं होता था यार, प्लेयर ही नहीं खेलते थे। लोग सोचते थे कि यहाँ से क्रिकेटर नहीं हो सकता, और हम दोनों इतने मैचेस कप्तानी किए, इतने मैचेस खेले। हमारे समय T20 नहीं था, मैं 450 के करीब मैच खेला। उस दिन कार्डिफ में एमएस 500 मैच खेला। तो अच्छा लगता है कि एक पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे क्रिकेटर्स नहीं होते थे। Bro, is someone building a house in the background of this video? I hear someone like carving up some metal or something. Like, what's going on? They've got 2 legends trying to film an interview, and you've got someone out the back trying to build a boat or something. What's going on? वहाँ से 2 कप्तान निकले, सौरव गांगुली और एम एस धोनी, तो वो खुशी की बात है। और लंबे कप्तान, लंबी रेस के घोड़े, Gaurav's going to sort them out. बहुत अच्छा लगता है। अब आपसे अगर मैं अब इतने लोगों के बारे में पूछ लिया, अगर विराट के बारे में 2 चीजें ना बोलें तो सारे फैन बोलेंगे व्हाई नॉट आस्क विराट, व्हाई नॉट आस्क विराट। ट्रेमेंडस। जब विराट कोहली खेलता है तो कहीं पे भी रहो, आके देखना है कि विराट कोहली खेल रहा है, वो इम्पैक्ट है उसका। और जब देखते हो तो लगता है कि इस बंदे में एक मिशन है कि इस टीम को सबसे अच्छा टीम बनाए। फिटनेस, यो टेस्ट लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन इसका कारण भी है, थोड़ा सा टफ बनना है, मेंटली टफ बनना है, क्योंकि फिटनेस ओरिएंटेड क्रिकेट हो चुका है, स्पोर्ट्स बदल चुका है, 20 साल पहले जो था बदल चुका है। तो बहुत होप्स है मेरा विराट कोहली के ऊपर। चाहेंगे कि टेस्ट सीरीज़ जीते इंडिया के बाहर। इंग्लैंड में बहुत बेहतरीन मौका है, उनको खुद अच्छा खेलना पड़ेगा, और भरोसा है देश का विराट कोहली। अरे पांडे जी कैसे हैं? Cameraman? मैं आया, जिम बंद पड़ा। Jim is closed. ये खराब है। और उधर वो क्वीन ने पूरा अरे वो क्वीन है, आप किंगो। Bro, are they staying in the Buckingham Palace? Yo, are they staying next to the Queen? What's going on? ऐसी बात है। इनको ना ऐसे टांगेंगे। एक बात बताओ, Do I know this दूसरा guy? काने फुसफुस कहाँ गया? अरे ये तो म्यूजिक सुनने के लिए लगा दिया था। तो दूसरा भी लगा लो, स्टीरियो आ जाएगा। You got to be able to hear out of one ear. Excellent. चलो आप बात क्या हो? All right, see you.
The man Ganguly, he's not मुझे having ऐसे it. स्पेशल अपीयरेंसेस बड़े अच्छे लगते He's not having हैं, छोटे छोटे कैमियो। Oh shit. Are they exchanging phone numbers? What's going on? Are they texting their wives back, do you think? Are they playing Clash Was Royale your against each favorite other? I don't know. opposition? No, किसके I'm साथ playing some जीतने में Clash. सबसे ज्यादा मजा आता था? ऑस्ट्रेलिया, ये इतना अच्छा था वो इस समय। ऐसा Yeah, ऐसा the man Ganguly already. I mean, look, I already love you, Ganguly, but hey, you just saying that makes my heart warm. होता था ना, Come on. टीम का इवैल्यूएशन ऑस्ट्रेलिया के सामने होता था। Yeah. बज्जू मुझे कहता था यार सबको तो आउट कर दिया, अब 7 नंबर पे गिलक्रिस्ट आएगा। Yeah. हमने 1 2 3 4 5 6 सबको आउट करके 7 नंबर पे गिलक्रिस्ट आता है, कहता है ये सबसे तेज रन बनाएगा। Yeah. तो उस टीम का बात ही अलग था। मैंने पिछले जब से क्रिकेट समझा हूँ 80 से अभी 2018 ऐसा टीम देखा नहीं। Yeah. बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग हर जगह पे प्लेयर था, हर जगह पे प्लेयर था। और जब करंट ऑस्ट्रेलियन टीम देखता हूँ और खिलाड़ी देखता हूँ, सोचता हूँ कि कितना फ़र्क है दोनों टीम। Yeah. स्मिथ और वार्नर की जो बैन लगा है उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। Yeah. जब वो वापस आएंगे तो टीम अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन उस समय Wait, this episode is from 2018, so this is 4 years ago when the ban for Steve Smith and David Warner was obviously still happening. And now we can have a look at it 4 years later, and the man Ganguly said, it's so different now. The Australian team isn't the same. I think we're pretty good now. I mean, we won a T20 World Cup. I think we're going to be playing in the World Test Championship final next year. So I think, he's definitely right about Steve Smith and David Warner coming back. I think we all knew that as soon as they came back into the team, everything would sort itself out. So, hey, जब he's a smart man. 2090 He मिडिल knows. 90s अर्ली 2000 एक दो बंदा गिर भी जाए तो उस टीम में कुछ फर्क नहीं था। Yeah. क्योंकि Always had बाहर ऐसे backups, खिलाड़ी yeah. थे जो उनसे भी अच्छा था, लेकिन ये बंदे अंदर रन बनाते थे तो इसीलिए उनको मौका नहीं मिलता था। तो दे वर दैट गुड दैट टाइम। Yeah. So आप लोग का I like this that you guys have a lot of good banter। कि मतलब with you it's that कि मेरी भी टांग खींचो मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि इज्जत बहुत है। और मैं तुम्हारी टांग खींचूंगा तुम बुरा नहीं मानोगे। और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीम्स में आपको बहुत देखने को मिलता है, दे आर कॉन्स्टेंटली हैविंग अ गो एट ईच अदर, क्योंकि आपको पता है इट्स ऑल इन गुड। देखो आप जब एक साथ रहोगे और अब हम साल में 7-8 महीने एक साथ रहते थे, हमारे वो टीम में भी थे कि एक दूसरे के पीछे पड़ते थे, लेकिन इज्जत बहुत था। Yeah. क्योंकि अगर एक आदमी को इज्जत करोगे ना पब्लिकली, तब उसको कुछ 2 बातें बोल भी दोगे तो वो सुन लेगा। Yeah. लेकिन आप उसको इज्जत नहीं करोगे Yeah. तो फिर वो सुनेगा नहीं। Yeah. तो इस टीम में वो था। मैं इस टीम में भी देखता हूँ, शेखर धवन हो, विराट कोहली हो, Yeah. रोहित शर्मा हो, हार्दिक पांड्या से मिला था Hardik इधर। Pandya. मुझे लगा ये जमैकन बॉर्न है। रास्ता मान बन नहीं, गया। ये तो बड़ौदा से नहीं हो सकता, बापू की शहर से तो ये हो नहीं सकता। बारबेडोस से। ये बारबेडोस से ही है। कल मिला था उससे। तो ऐसे ही होना चाहिए यार, एक साथ क्रिकेट खेलते हो, हारोगे जीतोगे समय क्योंकि क्रिकेट एक दिन छूट जाना है। 10 साल 12 साल 14 साल उसके बाद यादें रह जाएंगी, दोस्ती रह जाएंगी। Yeah. तो अगर आप एक अपने खिलाड़ी को इज्जत करोगे तो फिर उसको कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर आपकी दोस्ती सबके साथ रही है आफ्टर यू क्विट प्लेइंग, यू फ्रेंड्स विद एवरीवन। बिल्कुल, क्योंकि ये लाइफ का सबसे खुशी का समय था। ये 15 साल भारत के लिए खेले, वो वापस नहीं आएगा। Yeah. और ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, जितने ज़्यादा पैसे कमा लो क्रिकेट छोड़ने के बाद, कहीं चले जाओ, जितने भी काम कर लो, एक क्रिकेटर के लिए लाइफ में वो सबसे खुशी का मौका होता है जब देश के लिए खेले, रन बनाए। तो मुझे किसी ने कहा था कि तुम इतने चीज़ कर लेते हो तो फ़र्क क्या है? मैंने कहा वो सेटिस्फैक्शन अलग ही है जब तुम एक तेज़ गेंदबाज को कवर ड्राइव मारते हो ना, जब बॉल बीच में लगता है तो कवर और मिड ऑफ के बीच से जाता है और सारे ताली मारते हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। Yeah. जितने भी आप काम कर लो, जितने भी बड़े बन जाओ, जितने भी पैसे कमा लो, वो वापस नहीं आएगा। Yeah. तो इसीलिए जब इनसे मिलते हैं ना तो कहते हैं कि यार इनके साथ इतना समय बिताया, ग्राउंड में इतने लड़ाई की एक दूसरे के साथ, मैच जीते एक साथ, खुशी हुई एक साथ, तो वो यादें हमेशा रह जाता है। Very wholesome moments here from the man Ganguly. End of part 1. I'm gonna check out part 2 during this video. Normally I would do one video for each part, but I'm interested. I'm gonna we're gonna get to part 2. All right, here we go. Part 2. Sourav Ganguly. Breakfast with Champions, part 2. Let's get into it. कुछ भी Come कर on, लो, we're ready. जितने ज़्यादा पैसे कमा लो I'm क्रिकेट here. छोड़ने के बाद, कहीं चले जाओ, जितने भी काम कर लो, वो सेटिस्फैक्शन अलग ही है जब तुम एक
तेज गेंदबाज को कवर ड्राइव मारते हो ना, Yeah. जब बॉल बीच में लगता है और कवर और मिड ऑफ के बीच से जाता है और सारे ताली मारते हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। Previously on Oak Tree Creative's Breakfast with Champions. अरे वो क्वीन है, आप किंग हो, आप आगे जाओ, ऐसी क्या बात है। तो जैसा मैंने ऐसा शर्ट ऊपर करने की कोशिश की तो वीवीएस ऐसा खींचता रहा, तो मैं ऐसा टैप करते Just a हुए little उसके पास recap गया, वीरू from चौका आ part गया। one. अरे कोई बात नहीं, मैंने कोई बात नहीं, मतलब आशीष हो, वीरू हो, यूवी हो, मुझे बताओ मैं क्यों नहीं खेला, ये क्यों कर रहे थे, ये क्रिकेट में कर Right, करके the episode, कि here we क्या go. क्या आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर हमारे शो पे। just while we're looking at it, hold on, just go back a second. I'm sure no one cares, but look at the table they're sitting on and look at it rock back side to side. Look at it. करके कि Wait for it. क्या क्या Look at that. आरोप लगाए गए हैं Yo. आपके ऊपर हमारे शो पे, ठीक है। Yo, they're literally at the Buckingham Palace, and the table they're sitting on is broken. That's how you know. It's just the world is not perfect. Not everything can be लगाओ, perfect. लगाओ, कोई either, problem you know? नहीं। कंफर्म कर लेते हैं ना सारे। तो सचिन ने कहा था कि उन्होंने आपके What? कमरे में Sachin? पानी वानी भर दिया था और जो आपकी चप्पलें तैर रही थी। सो क्या रहा ये था बात सच है? सो रहा था दोपहर को यार, संडे को, तब 14 साल का था, 14 साल। हाँ। इंदौर में था कैंप में, नेशनल कैंप, सुबह बहुत भगाता था वासु सर, हाँ। तो दोपहर को संडे छुट्टी मिला, मेरा और मेरा रूममेट दोनों सो रहे थे, तो 5 बजे नींद खुला तो दिखा कमरे में सिर्फ पानी ही पानी, Oh, the पीसेस ऐसे फ्लोट हो रहे। suitcase. मेरे को लगा अंदर से ना पाइप फट गया है Yeah, that's बाथरूम what I was का, thought. तो बाथरूम में जाके घुसा, देखा वो तो बिल्कुल सूखा है, तो दरवाज़ा खोला तो सामने दोनों खड़े थे, विनोद कामली और सचिन तेंदुलकर, दोनों ऐसे बाल्टी लेकर Nah. और डालने वाले थे पानी अंदर। यार मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं यार, कहते नहीं तुम क्यों सो रहे हो दोपहर को, मैंने कहा कोई गुनाह किया दोपहर को सो के, कहते नहीं चलो टेनिस बॉल पे खेलेंगे, मैंने कहा ऐसे ही उठा लिया उसने, मार के पानी डाल के क्यों उठाया, पहली बार तब देखा था Nah, सचिन। as much as I love Sachin, even though they were like, what, 15, I think he said, bro, me and Sachin are fighting. If someone does that, imagine if you're like phone, or obviously back then they probably didn't give a shit about a phone, but I don't know, what was a prized possession back then? A certain pair of cricket pads or the certain box, bat, obviously, whatever. Imagine if that was covered in water and you were 15, you know, obviously when you're that young, you can't just go out and get a new bat from the sponsor. Bro, that shit would get me angry. Damn, okay, Sachin. Sachin was on demon time. इतने Yo. बड़े बड़े बाल थे, नाम तो था Yeah, सचिन very सचिन, famous. लेकिन बॉम्बे से थे तो बॉम्बे से Even when he नाम was बहुत bloody बहुत शोर 15. मचता था उन दिनों, और नेट से उनको निकाला नहीं जाता था, सिर्फ बैटिंग ही करना, वासु सर भी उसको खींचना पड़ता था नेट से कि चल अब निकलो, कैंप बाकी लोगों के लिए भी है, तो तभी से पता था कि इस बंदे में कुछ अलग है। या एक कप्तान सचिन को देखा था जो गुस्से में था, कि हम अच्छे नहीं खेलते थे उन दिनों, और पूरा उसका टोटल क्रिकेट देखा हूँ पास से, या 14 साल की उम्र से, फिर इंडिया के लिए खेले, एक साथ ओपन किए, तो उस आदमी को अंदर से जानता हूँ, Yeah. क्या करना चाहता है क्रीज पर, कहाँ खेलना चाहता है, किसके ऊपर गुस्सा है। सचिन ने एक बारी कुछ ऐसा भी कहा था ना, कुछ कहा था कि सुबह आके भागो मेरे साथ, वेरी अर्ली इन योर करियर, आई थिंक 96 97 में। हाँ, वो गुस्से में था, हाँ। वो हम हार गए थे बारबेडोस में, Yeah. 120 नहीं कर पाए। Damn, मैं they पहली couldn't बार even- सचिन को देखा रोते हुए ड्रेसिंग रूम में। Bro, did I? Oh no, it's still recording. I had to check. I was trying to put my drink bottle on the ground, and I don't even know what happened. ये Moving मैच on, हमें keep जीतना going. चाहिए, I was going to वेस्ट say इंडीज के something, सामने but I forgot. अच्छे विकेट पे आउट हो गए, तो गुस्सा निकला मेरे ऊपर, कहते damn. आप कल से Sachin got सुबह angry. रोज रनिंग करना, अगर रन बनाना है तो, जब यंग खिलाड़ी था, मेरे साथ टीम में रहना है तो ये करना पड़ेगा, बट सही है, कप्तान को गुस्सा भी होना चाहिए। या और रूममेट था दोनों इंग्लैंड में, तो एक दिन रात को देखा कि ये बंदा ना चल रहा है रूम में, घूम रहा है उठ के, मैंने कहा यार बाथरूम गया होगा, मैं उल्टा साइड जाके सो गया। अगला दिन उसको कुछ पूछा नहीं, दूसरा दिन फिर देखा कि उठ के चल रहा है वो, तो मैं ना उठ के बैठ गया, बोले ये करता क्या है रात को 1-1:30 बजे, वैसे ना रूम में घूमता है, घूम के चेयर पे बैठता है, बैठ के फिर आके बाजू में सो जाता है। तो मैंने उसको अगला दिन कहा यार तू तो डरा रहा है मुझे, तू कर क्या रहा है रात को। हाँ, नहीं मैं रात को चलता हूँ नींद में, उसको ये what? आदत थी रात को नींद में चलना, सचिन तेंदुलकर को तो क्या पता चलेगा, अरे इतना दूर खड़े हो कुछ पता ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है इतनी दूर से, नहीं तो जोर से बोल दो कि क्या पूछना है। Hey, actually, comment down right now if you are a sleepwalker. Hey, remember, we're trying to push the algorithm on YouTube, trying to push my videos to the recommended. So, hey, comment
just make sure you comment. Let's check in halfway through the video. बहुत बार हुआ हाँ, वर्ल्ड कप 92 he took your bat. है बहुत बार हुआ है Sachin's taken your bat a lot of times. But I find that strange, I find that strange because Sachin is so like, ये मेरा bat 100 ग्राम ज़्यादा हो गया, इसको मैं यहाँ से करूँगा वो. For him to be using somebody else's एक्चुअली bat, I would feel. वर्ल्ड कप में वो जिससे खींचते हैं ना वो कैरी करता था वो For the Sandpaper? ball. हाँ सैंड पेपर Oh, और रंदा shit. कहते हैं एक जिसको ना सेकंड, सैंड थोड़ा पेपर सा- बोल नहीं सकते ना क्रिकेट में, बोलना भी अलाउड नहीं है ना? बैट के ऊपर बोल सकते हैं क्योंकि बैट से रिवर्स स्विंग नहीं होता बैट से हल्का ही हो जाता है Really? तो साथ में कैरी करता We're making jokes of Australia right now. Really? Really, Surav? था तो एक्चुअली Really, दोनों mate? ना मैं बीच में हेवी बैट यूज़ करने लगा था Yeah. तो वो भी हेवी बैट यूज़ करता था तो शायद उसको मेरा बैट का फील पसंद होता था वर्ल्ड कप में 92 में मैं ड्रॉप हो गया टूर से Yeah. वर्ल्ड कप टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ तो लोग जब वापस जाते कहते कि तुम ठीक ठाक घर जाओ कोई बात नहीं अगला टूर पे आके खेलोगे उसने कहा मैं तेरा बैट ले लूँ मैंने कहा भाई ड्रॉप कर दिए बैट भी ले लिए अब क्या क्या करोगे तो उसको बैट दिया वर्ल्ड कप में तो बीच बीच में जब वो फेल होता था जब उसके रन्स नहीं बनते थे तो वो ढूंढता था बैट्स तो मेरे किट बैग पड़े देते थे हेवी बैट्स आके उठाए उसको लेके खेल गए Yeah. फिर सिडनी में रूममेट था मेरा दोनों मैं खेल नहीं रहा था Yeah. मुझे मौका नहीं मिल रहा था और उसको टेस्ट मैच खेलना था पहला 2 टेस्ट मैच रन नहीं बने This is 92. 92 Yeah. 91 92 Yeah. तो रात को उठ के कमरे में ना 2 बजे मैं सो गया सडनली रात को 2 बजे उठा देखा कमरे में लाइट जला हुआ है और वो बैटिंग करे जाए मैंने Was he कहा कल sleep खेलना है batting तुझे or- सो जा ऑस्ट्रेलिया में एक था कि लेट से टेस्ट मैच शुरू होता था 11 बजे Yeah. तो आप लेट से उठ सकते हो लेट मतलब 8 अजय जडेजा वाली लेट नहीं Late means 8. 8 बजे Not that. वो तो 8 बजे गुड नाइट होता है गुड उनका. नाइट होता है। तो मैंने कहा सो जा कल बैट नहीं करना कहता नहीं कुछ नहीं नींद नहीं आ रहा है मेरा एड्रेनलिन इतना चल रहा है तो फिर जाके अगला दिन कहता है अब जब नींद आएगा सो जाऊंगा 6 नंबर पे हूँ जाके ड्रेसिंग रूम में सो जाऊंगा तू मुझे उठा दियो बैटिंग से पहले तो वहाँ What? पे मैच चल रहा था और मेरा नज़र उसके ऊपर था कहीं लेट हो गया और विकेट गिर गए तो ये बेचारा सो रहा है तो जाके सिडनी में शतक बनाया तो I've seen lot of time Well, there you good times with go. him. He ended up scoring a century in that match, so it just shows literally it doesn't matter what happened to the man. You could have literally taken off both his hands, both his feet, left him with one finger on each hand, and he still would have made a century. Like, I swear I'm not even kidding with that either. Like, he probably would have made a century with one finger on each hand. It's But It's just you what he did. had to Let's do not this a even lot. lie. एक बारी कुछ VVS लक्ष्मण का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा था क्योंकि वो उसने कहा कि नहीं कि वो बताओ। बैटिंग से पहले नहाता है पूरा बताया कि क्यों नहाते हो. और नहाता है और साबुन वाबुन लगा के ऐसा नहीं कि किसी Just a को टेंशन है relaxing प्रेशर है bath. आप फट से शावर में गए 2 मिनट में पानी डाला बॉडी का टेम्परेचर नीचे गया Yeah. क्लीन करके पैड वेड पहन के तैयार हो गए तो अगर वो 5 नंबर और आप 6 नंबर होते थे ना तो 6 नंबर वाला एक आँख ग्राउंड के ऊपर एक आँख टॉयलेट के ऊपर कि VVS नहा रहा है पानी शावर से निकाल मतलब जन्म जन्म की हाँ। महल उतर रही है. मतलब एक साउथ अफ्रीका में एक बार वो 5 था मैं 6 था जब मेरा कमबैक सीरीज हुआ केप टाउन में और आखिरी टेस्ट था तो सचिन बल्लेबाजी करने जा रहा था उसको अंपायर ने रोक दिया कहता है कि नहीं तुम आखिरी 10 मिनट फील्ड से बाहर थे तो 10 मिनट में विकेट गिर चुके हैं तुम बैटिंग नहीं कर सकते तो अगला VVS था और वो शावर में था अगला VVS था तो और मैं ट्रैक सूट में तो एक पैर में सचिन पैड पहना रहा है एक पैर में कोच पैड पहना रहा है ऊपर में मैं टी शर्ट लगा रहा जैसे दुल्हन तैयार हो हूँ रही है। दुल्हन तैयार हो 2 मिनट में मैं अंदर और VVS वहाँ पे ऐसा साफ वाफ करके मैंने कहा VVS आज ने तो मरवा ही दिया तो बट ये भी पूछा था हमने VVS से. ही सेड दैट नहीं वो गलती अंपायर की थी, उन्होंने सुबह बताया नहीं कि ये नहीं जा सकता. जिसका भी गलती था नहा तो रहा था वो जिसका भी अंपायर से Yeah, गलती नहीं था really? शायद क्योंकि सचिन 10-12 मिनट फील्ड से So बाहर you're telling me this man, like, they would rock up to cricket, right? Let's say Sachin was batting at 5 or something like that. And the man Sachin is in the back room having a bath. Is that what I'm getting from this information? Or are they saying that the man had a bath before the game? Like, bro, you've got to be a different breed of cricketer to just jump in a relaxing bath with nice candles and flowers and nice smelling soaps and all that stuff. Jumps in a bath before he's going to play, big test matches on the other side of the world. I mean, it's just some people are just built different, aren't they? Like, I don't think there's anyone else that would do that. Like, there's just so many unique things about, the greatest cricketers of all time. This man, Sachin, was having nice baths before games. The man, Shane Warne, he used to eat about 10 bloody cans of baked beans and used to drink beer till about 1 hour before the game. It's just, I don't know, people were just built different, seriously, and could just
do whatever they wanted. They were that talented. Like, man. ही सेड कि अंपायर ने सुबह बताया नहीं, अगर बताया होता तो मैं रेडी होता, तो उन्होंने तो फाड़ दिया बिल अंपायर के ऊपर। कोच रवि शास्त्री ने बोला कि आपको वो छोड़ के चले गए थे बस में। आप उनको सुबह मत इंटरव्यू करिए, ब्रेकफास्ट शो पे मत लाइए उनको, याद ही नहीं रहता कुछ उनको। मिलूंगा तो मैं कहूँगा कि यार आप क्या बोल देते हो आपके ब्रेकफास्ट शो में, पता नहीं ऐसा चीज़ हुआ भी नहीं था। तो लेकिन सुबह मत करिए उनसे इंटरव्यू, थोड़ा शाम को करिए कि याद आ जाए सब कुछ चीज़ें। आई लव दिस अबाउट यू, आप बाउंसर में बाउंसर, डरना नहीं किसी से। Oh, they're playing a bit of Clash Royale again. Little bit of Clash Royale for the lads. I like it. I did a lot of growing up in Calcutta. Actually, So he's मुझे from कुछ दिन Kolkata, पहले ये right? स्टोरी याद आई। 92 के टूर से वापस आए थे, टॉलीगंज क्लब में आप स्विमिंग करने आए, ठीक है। हम बच्चे थे, मतलब इतने भी नहीं पर थोड़े 11-12 साल के थे। तो सिर्फ टॉलीगंज क्लब में हम 3 कज़न थे, शोर मचा रहे थे स्विमिंग पूल में। यू केम फॉर अ स्विम, आई थिंक यू सॉ कि यार ये बड़ी इरिटेटिंग चिल्ड्रन, तो आई थिंक आफ्टर 15 मिनट्स यू वेंट, सो सडनली वी रिकग्नाइज, क्योंकि हम बचपन से क्रिकेट का कीड़ा था हमें, वी रिकग्नाइज भागे भागे आए पीछे ड्रेसिंग रूम में, एंड यू वर जस्ट लाइक कोमिंग योर हेयर, यू वर गेटिंग रेडी। तो हमने फिर कुछ सवाल पूछे। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट क्रिकेट इंटरव्यू आई मस्ट हैव हैड इन 92 इन द टॉलीगंज क्लब Yo, चेंजिंग what रूम। if, what if the man Ganguly had his, you know, had his peen hanging out, and they're in there asking him questions when they're 11 years old? Yo, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, बाउंस क्या होता है, ये क्या होता है, दैट्स व्हेन यू That was टोल्ड the अस, एंड आई bounce. रिमेंबर वन लाइन वेयर यू सेड दैट चांस भी नहीं मिला और एकदम मुश्किल भी बहुत है ऑस्ट्रेलिया में। तो हम वापस आए, थोड़ा सा समय लगता है यूज टू होने Yeah. क्योंकि और वो ऑस्ट्रेलिया अलग ऑस्ट्रेलिया था, पेस Boom करके ऐसे, boom करके बॉल और आएगी। इंडिया तब बाहर जाके अच्छा नहीं खेलता था क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली बाहर नहीं जाते थे। या ऑस्ट्रेलिया में मुझे याद है 91 में गए थे, और उसके बाद अगला बार ऑस्ट्रेलिया गए 99 में, या 8 साल के बाद। तो और सब 17 साल का था, मेरा गेम बना भी नहीं था उसके लिए, आई वाज टू अर्ली दैट गेम बना भी नहीं था उसके लिए। तो from the last चले गए time they घर, toured, कोई that's प्रॉब्लम crazy. नहीं, जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे, मज़ा आता था, हमारा टीम बहुत अच्छा था। और बॉलिंग मशीन भी लगाई थी घर में। पिताजी ने सब कुछ लगाया था बेटे के लिए, जिम, बॉलिंग मशीन, प्रैक्टिस पिचेस, घर में प्रैक्टिस पिचेस था, वाओ। पर नेट लगा दिए थे, एक सीमेंट और एक टर्फ, या कि यहाँ पे खेलते रहो, और नीचे जिम, बॉलिंग मशीन, सब कुछ। नेट बॉलर बन गए थे, सिलेक्ट हुए थे A बल्लेबाज net के तौर, bowler. और बन गए थे बॉलर टूट के। एक समय ऐसे था कि ड्रेसिंग रूम से बूट्स ही उठा के लेके जाते थे, बैट पड़ा रहता था, इधर मौका तो मिलेगा नहीं, इसको उठाओ और जाके शुरू से एंड तक बॉलिंग ही करते रहो। बट यू लाइक बॉलिंग, हां? आई डिड, शायद उसी के लिए बॉलिंग इंप्रूव भी हुआ है, या इंप्रूव भी हुआ है कि बॉलिंग डालते गए तो आइडिया होता गया। बट दिस आई हैव नोटिस, दिस यू एंड सुनील गावस्कर हैव इन कॉमन। आप दोनों को लगता है कि आप मतलब थोड़े वेस्ट इंडीज के पेस बॉलर हैं। नहीं, ही इज लॉट स्लोअर देन, Yo, hey, उनका बॉल everyone thought they were a West Indian pace bowler at one point in their life. Like, I mean, everyone tried to emulate those old West Indian bowling lineups of just fucking steaming in with just relaxed entire body, and then when you get there to throw the ball down and bowl it, it's coming out like it's a goddamn rocket. Although the man Ganguly might have not been rockets, it might have been custard arm. So पीछे से हवा देना पड़ता था ये पहुंचने के that's लिए। all right. मैं फिर भी पहुंचा देता था, मेरे एजिस कीपर के पास जाते थे, उनके लिए कीपर को आगे आना पड़ता था, एजिस के आगे। 7 तारीख को महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे, 8 तारीख को सौरव गांगुली का बर्थडे, 10 जुलाई को सुनील गावस्कर का बर्थडे। That's kinda cool, तो ये है कुछ जुलाई में बहुत रन्स बने भारत के लिए, भारत के बहुत रन भी बने और कप्तान भी बने। तो 9 तारीख को वी हैव टू ये लाइनअप पूरा करने के लिए एक इंडियन कप्तान है कहीं पे जो 9 जुलाई को 10 साल बाद कप्तान बनेगा। 10-12 साल का है, कोई सोच रहा है कोई 9 जुलाई को पैदा हुआ है कि भाई ये है मेरा मेरा लाइनअप। अच्छा, एक और चीज, सो देयर इज समथिंग यू हैव इन कॉमन विद स्मृति मंदाना, हमारी अपकमिंग स्टार है स्मृति मंदाना, और आप में क्या कॉमन है? दोनों बाएं हाथ से खेलते हैं, दोनों बाएं हाथ से खेलते हैं, पर ओरिजिनली दोनों हैं Ooh, right-handed। really? और क्यों बाएं हाथ से खेलते हैं ये भी कॉमन फैक्टर है अच्छा, अपने बड़े भाइयों की वजह से। हाँ, और दिस इज समथिंग सॉर्ट ऑफ इन कॉमन विद सचिन। तो बिग ब्रदर फैक्टर है वो सचिन के साथ भी कॉमन है, क्योंकि वो भी अपने भाई के बैट से खेलते थे, तो इसलिए उनकी गेम वैसे बनी। और आपकी ये बात स्मृति मंदाना और आपकी कॉमन है कि बोथ योर ओल्डर ब्रदर्स प्लेड लेफ्ट हैंडेड,
तो आपने ग्लव पहनना था क्योंकि ग्लव अलग होते थे Yeah. और तब पिताजी उनके लिए किट खरीद के देते थे। मैं तो फुटबॉल खेलता था। तो पहला मैच खेले एक इंडिया बंगाल अंडर 15 ट्रायल मैचेस थे, तो 7 जनों का ना टाइफाइड हुआ। उस समय बहुत टाइफाइड हो रहा था कलकत्ता में, 89 आई थिंक 88। तो सब 7 जने का टाइफाइड हुआ, तो टीम में खिलाड़ी नहीं थे। और उन दिनों इतना स्ट्रिक्ट नहीं था सिलेक्शन पॉलिसीज ऐसा कुछ। तो मुझे पूछा गया कि आप खेलोगे? मैंने कहा खेलूँगा। किट नहीं थे, भाई के बैट पैड ग्लव्स उठा के ले गए और जाके 100 बना दिया पहला मैच। घर में ना मेरे ऊपर चार भाई थे, कजन्स एक साथ रहते थे, ब्रदर्स, और सब बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। सब काम करते थे दाहिने हाथ, खाना लिखना फेंकना सब कुछ दाहिने हाथ से, लेकिन जब बैट उठाया तो बाएं हाथ से उठाया। तो उनको देख के वही हो गया। मैं भी वही लिखता हूँ, स्ट्रॉन्ग हैंड राइट हैंड है, लेकिन जब बैट उठाया तो बाएं हाथ से उठाया। इट्स अमेजिंग। तो मतलब वो सचिन के साथ भी है, सब कुछ बाएं हाथ से करते हैं लेकिन बैट उठाते हैं दाहिने हाथ से। तो ये कंफ्यूजन हमने उनसे पूछी, क्लियर कराओ, उन्होंने कंफ्यूजन और बढ़ा दी क्योंकि ही सेड के फोक जब चॉपस्टिक फोक उठाते हैं तो लेफ्ट हैंड से और चॉपस्टिक उठाते हैं राइट हैंड से। मैंने कहा समझ नहीं आ रहा क्या उसको बोलना कि लिख के लाओ। हाँ लिख के लाओ, कौन से जगह क्या करते हो लिख के लाओ, हम पढ़ लेंगे। एंड यू took your brother's place in the ये क्या कहानी है? फाइनल मैच था जब मैं क्लास 12 में पढ़ता था तब। तो मुझे नहीं लगा था कि खेलूंगा क्योंकि पूरा सीजन बाहर ही बैठा हुआ था। फाइनल के 15 दिन बाद मेरा बोर्ड एग्जाम था। So this was the under 19. Oh, this was the Bengal team. Ranji This was Trophy the final 89. Ranji Trophy Bengal team. 89 Ranji Trophy final. So you've not played in the season till then? No, not a single game. Yeah. And I had gone for my tuitions and came back home and saw everybody quiet sitting on the sofa. तो मुझे पता भी नहीं था. I went inside and kept my books on the table and told my माँ भूख लगी है खाना दो. She took me to the dining. Yo, what? Hold on, I know this probably does. Like, the man Ganguly did not mean it in this way at all, but just the fact that he goes, I kept my books, left them on the table and told Mum, I'm hungry, give me food. Yo, that is crazy. If I said that to my mum, she's fucking slapping the shit out of me, give me food. Yo, you gotta say please. भूख लगी है खाना दो. Say please. She took me to the dining table, she was that's giving food and funny. I was eating. So I said, everything is okay. He said, yeah, everything is okay. I said, what happened? Why is everybody quiet? कहते हैं नहीं कुछ नहीं, ये आप कल खेल रहे हो? मैंने कहा हाँ कल खेल रहा हूँ मैं। तब इतना मीडिया नहीं था, इतना मीडिया टीवी इतना इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था। कल खेल रहा हूँ तो मैं बहुत खुश था। अरे वाह, तो रणजी ट्रॉफी फाइनल खेलने को मिले। So his first Ranji Trophy game of that season was in the final. Yo, now that's okay. Did he stand up to the challenge? I don't know. खाना वाना खाया तो घर आए, उस रूम से इस रूम आया तो मैंने भाई से पूछा कि बाहर कौन है? मैं खेल रहा हूँ, किसका जगह? कहता मेरा जगह। वो ऐसा हंसी ना ऐसे हो गया, सीधा यहीं से ये बंद हो गया। Yo, why did his brother have to sit out though? That sucks. Imagine taking your brother's spot. Bro, if it's an older brother as well, they're not going to be happy. Play better, I guess. A long time ago कि your love story with your wife was a Parinita kind of situation. कोई नेबर थे, कोई दीवार तोड़ी थी? नेबर थे, दीवार नहीं तोड़नी पड़ी थी। तो परिणीता में तो दीवार तोड़ी थी। नहीं नेबर थे, दीवार नहीं तोड़ना पड़ा, बट थोड़ा सा एग्जैजरेटेड था मीडिया में। बट कि एग्जैजरेटेड था कि आई थिंक समबडी आस्क्ड कि भाग के शादी किया था। नहीं भाग के नहीं, शादी कर ली तो मैं बताया नहीं किसी को। नहीं शादी नहीं किया था, शादी तो धूमधाम से पिताजी ने दिया फरवरी में 97। तो घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था क्योंकि कंजर्वेटिव फैमिली थे, किसी ने लव मैरिज किया नहीं था उस फैमिली में पहली बार। तो किसी में हिम्मत नहीं थी बोलना घर में आके कि मुझे ये लड़की पसंद है। घर में सब गुस्से थे तो पिताजी फ़ोन करके कहते हैं कि क्रिकेट पे ध्यान देना, वो जो होगा मैं संभाल लूँगा, तुम क्रिकेट खेलो। अरे वाह। एंड जॉइंट फैमिलीज में ये बड़ा ज़रूरी होता है, इफ़ योर फादर इज सेइंग के मैं संभालूंगा, क्योंकि सवाल पूछने वाले बहुत लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ज़्यादा लोग होते। पता है उनके लड़के ने क्या किया? नेशनल डिबेट बन जाता है। और कलकत्ते में तो है भी शौक अड्डे का सबको। बिल्कुल, आओ बैठो, चाय पियो, गप्पे मारो। कलकत्ता में पाड़ास में मेसी और रोनाल्डो ने जितना गोल किया है उतना उन्होंने अपने करियर में गोल नहीं किया होगा।
पाड़ा जो ना समझे लोग मतलब Locality. नुक्कड़ जिसे कहते हैं। नुक्कड़ जिसे हाँ, कहते जिसे हैं वहाँ पे हर जगह मेसी है। आप वर्ल्ड कप के टाइम देखोगे हर गली में हर मोड़ पे ब्राजील और अर्जेंटीना के फ्लैग। मैंने कहा एक वर्ल्ड कप तो खेल लिया होता इतने फ्लैग लगाने से पहले। वहाँ पे वो नहीं है लेकिन सपोर्टर्स बहुत है, पैशनेट है बहुत ज्यादा। और चर्चे में माहिर है। Yeah. चाय पी के बैठ के कुर्सी पर, अरे खुद मेसी खुद रोनाल्डो में इस एंगल से गोल हो सकता था, उस एंगल जब बॉल पे किक मारने बोलो कहता सोने का टाइम हो गया। Sounds like me. चाय, चेयर और चर्चा। और जलेबी और समोसे। या सुबह सुबह। So is this the reason why you have your own football club? ये Does he? बचपन में चांस नहीं मिला फुटबॉल खेलने का। Oh, तो does he own one of the football teams in India? इसलिए अभी नहीं, ये कोइंसिडेंस है एक्चुअली। टूर्नामेंट शुरू हो रहा था तो बंगाल से टीम लेना ही था, क्योंकि फुटबॉल बंगाल में नहीं होगा तो कैसे होगा। तो जब ये बातें चल रही थी तो कहा कि हम भी कोशिश करते हैं, अगर बिड में जीत जाते हैं टीम के लिए। तो जीत गए और फिर तो बस उसके बाद टाइटल जीत गए। 2 बार एक और जीत टाइटल गए। जीत हाँ, गए। title? होता ही क्या? But is so then now Is it the people in Kolkata Calcutta team? are they more proud of Must be. Saurav Ganguly, the Indian cricket captain, or more proud of Saurav Ganguly, the football No, club? The football फुटबॉल क्लब owner. का तो मैं ओनर हूँ, सिर्फ कुर्सी पे Yeah, बैठ के true. चाय पीते पीते चिल्लाओ। Yeah. लेकिन क्रिकेट तो जाके खेलना पड़ा, Ah, उसमें फ़र्क है। क्रिकेट इस कंट्री से कोई छीन नहीं सकता। it just gets bigger and bigger. ओह या एब्सोल्युटली। Of all your batting performances, which one did you think was the most dominating? क्योंकि आपने 16 टेस्ट सेंचुरी मारे, आपने जो भी टेस्ट 16 सेंचुरी मारे कभी टीम हारी नहीं। Man, they शायद never पहला शतक lost. लॉर्ड्स में Yeah. मेरे लिए बहुत Hey. महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक तो खुद को ये कह पाया कि इस लेवल पे तुम खेल सकते हो, इस लेवल पे तुमको मौका दिया, तुमने शतक बनाया, मतलब तुम इस लेवल के लिए काबिल हो। और दूसरे जो क्रिकेट के साथ जुड़े हैं, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट एक इतना बड़ा गेम है कि ओपिनियन सबसे आते हैं, Yeah. और जो ओपिनियंस देते हैं उनको भी ये मैसेज गया है, वो भी ये सोचने लगे कि नहीं ये बंदा इस लेवल पे आउट ऑफ प्लेस नहीं है। Yeah. तो शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट एक जिस इनिंग से हो, वो शायद मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट इनिंग्स है लाइफ का। इट वाज फन, Yeah. सबके साथ मिलजुल के खेलते थे। इट वाज लाइक अ फैमिली। Yeah. फ्रीडम था, स्पेस था एक दूसरे का, लेकिन ग्राउंड में जोर लगाना है। आप ट्रेनिंग करो, प्रैक्टिस करो, ग्राउंड में जोर लगाओ, बाकी जो मर्जी करो। लेकिन जब Hey, and that's actually it. I've just got a question that came to my mind that I want, if you are watching right now, you are going to answer this question in the comments. If you could hit your first test century anywhere, you know what? Let's say it this. You were given an opportunity, you could select one place in the world to score your one and only test century in your career, let's say. Imagine, use that imagination, and if you could only choose one venue in the world or place to hit your only century out of your home, you know, not from your home country, because obviously you'd choose your home ground and home country. It's easy like that. If it was me, I'd be choosing Lords as well. Just like the man Ganguly said, he scored his first ton at Lords. I reckon I'd be choosing Lords as well, especially as an Australian. Like, to score a century in Lords or anywhere in England would be the most special. Like, woo, I'd be celebrating. I'd be celebrating. I'd सुबह be के taking my shirt 8 off as बजे well. से 4 so बजे I मेरा, don't blame him. 4:30 से आपका, ये थियोरी था That's मेरा। nice. वहाँ पे मैं जो कहूँगा वो होगा। 4:30 बजे के बाद आप मुझे जहाँ ले जाना है, जहाँ भगाना है भगाओ, मैं तैयार हूँ। कप्तान का ख्याल कौन रखता है? कप्तान का अपना भी ख्याल रखना पड़ता है और टीम का भी ख्याल रखना पड़ता है। आप लोग फैब 4 थे, उस वक्त ये फील आती थी कि हम मतलब जैसे वेस्ट इंडीज के 4 पेस बॉलर होते थे वैसे हमारे 4 बैट्समैन, एंड में फिर वीरू भी जुड़ गया उस लाइन में, नहीं टेस्ट आता क्रिकेट था, में। नहीं आता था। पर आप लोग को एक ऐसा लगता था कि एक समय 2001 से 2006 तक मैं कप्तान था, प्लेयर था, तो ऐसा सोच था कि यार कोई ना कोई बना ही देगा। Yeah. कभी वीरू आउट हो गया तो राहुल बना देगा, राहुल आउट हो गया तो सचिन बना देगा, सचिन आउट हो गया तो सौरभ बना देगा, और किसी ने नहीं बनाया तो हमारे शावर वाले बना ही देंगे। The S in VVS. S in very special, one of the best persons you'll ever meet. Nice. I think I've done the VVS Sir, हो गया? Laxman episode. I'm मेरे not को sure I have. जो कवर करना था मैंने कर दिया, अब कुछ बाकी भी नहीं था। कुछ बाकी भी नहीं अगला रहा। 5 साल को इंटरव्यू नहीं दूंगा तो भी चलेगा। मैंने सबसे पहले Hey, तो that's आशीष मेहरा beautiful. को Because the man, hey, this episode is 4 years old. A good timing. He just said within 5 years, then maybe another episode. But this is beautiful. एक Beautiful. मैसेज डालना है
और उसको बोलना है कि दादा ने कहा था 11:30, दादा है शार्प 11:30। ऐसे गलत खौफ मत। हाँ, ये रूमर ना फैला। Hey, shout out to the two legends, the man Ganguly, the great man himself, Gaurav. Hey, another great episode from Breakfast with Champions. Is there any little extras at the end here? No, it's just the man Gaurav. Hey, that is going to cap it off. Firstly, if you haven't seen, I've literally done about like 20 different reactions to Breakfast with Champions episodes. So if you haven't seen them, just look up my name, look up Breakfast with Champions. I'm sure you'll find heaps. If there's any that I haven't done and I need to check out, please let me know, because I've got heaps on my list. I just don't know which ones to watch next. So, hey, let me guys know. Comment down below, leave a like, subscribe. I hope we all enjoyed, and I'll see everyone in the next one.